मित्रों, जो पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि हम विश्व के जनसंख्या के आधार पर दूसरे सबसे बड़े देश हैं। जब भी हम कोविड के किसी भी संख्या की बात करते हैं, चाहे कुल कोविड के केसेस हों या कुल एक्टिव केसेस हों या कुल मृत्यु के आंकड़े हों, ये नहीं भूलना चाहिए कि वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये स्लाइड ये दिखाती है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने कोविड के मैनेजमेंट में अभी तक संतोषप्रद कार्य किया है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू हियर इज that in spite of a population of 1.3 billion people, India has been able to manage COVID relatively well. Now, when I say that we have been able to manage this disease, this infection relatively well, what is it that I am implying? What we are trying to explain here is that if you look at cases per million population, it still remains amongst the lowest in the world. Today we have 538 cases per million population. This is as per WHO situation report. And you have figures for other countries also, from Americas, from Europe, and from other parts of the world. We are trying also to emphasize the point that case per million population in some countries are at least 16, 17 times more than what it is in India. Similarly, if we look at death per million population, again, the scenario in India is amongst the lowest in the world. We have 15 deaths per million population, whereas we have countries where it is 40 times as much. This is another fact that I would like to emphasize for your consideration, which is that if you look at the gap between these two worms here, representing the active cases, that is the cases which are presently either hospitalized and under treatment or are at home isolation being monitored. So that group of people and recovered cases, people who have recovered and gone home, that gap is progressively increasing. So the gap between active cases and recovered cases is progressively increasing. Today, we have 4,76,000 odd recovered cases and only 2,69,000 odd active cases. So when we talk of caseload of COVID in India, caseload is 2,69,000 people. That is important, because this tells us that at the end of the day, we have managed a situation where our healthcare infrastructure is not unduly burdened, is not creaking because of the pressure. So that is the significance of this slide. Now, in absolute numbers, we have told you that the active cases are 2,69,789 and recovered cases are 4,76,378. यहाँ हम ये निवेदन आपके समक्ष करना चाहते हैं कि जो रिकवरीज हैं वो लगभग दुगनी 1.75 टाइम्स हो गई हैं एक्टिव केसेस की तुलना में। यानी जितने लोग अस्पतालों में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, उससे कहीं अधिक संख्या में लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये हम आपको रिकवरी रेट की जो बदलने की दर है, रेट ऑफ चेंज आपको दिखा रहे हैं, कैसे रिकवरी रेट राइज कर रहा है। आप देखेंगे कि 10% से ये 26% हुआ, फिर 47% हुआ 31 मई तक, और 9 जुलाई को ये 62% हो गया है, और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिकवरी इज एप्रिशिएबल। ये कुछ जनसंख्या से संबंधित और आयु वाली जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं। इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि आप देखें कि 14 बरस से कम की आबादी का हिंदुस्तान की कुल आबादी में क्या प्रतिशत है, तो वो 1%, वो 35% है।
उस 35% आबादी में कोविड डेथ्स 1% हुई हैं। 15 से 29 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 18% हैं, और इस आयु वर्ग में कोविड की जो डेथ्स हैं वो केवल 3% हुई हैं। 30 से 44 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 22% है, और इस एज ग्रुप में कोविड की जो डेथ्स हैं वो 11% है। तो अगर आप इस पूरे ब्लॉक को एक साथ देखें, यानी 14 साल से कम के आयु से लेकर 44 वर्ष की आयु तक के लोग, तो इसमें जो कोविड से रिलेटेड डेथ हैं वो केवल 15% हुई हैं। लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक हाई रिस्क पॉपुलेशन भी है। ये वो लोग हैं जो 55 वर्ष से ऊपर की 45 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। 45 से 59 वर्ष की आयु में आप देखेंगे कि कुल जनसंख्या का ये 15% है, जबकि इसमें कोविड की जो डेथ हैं वो 32% है। 60 से 74 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 8% हैं, लेकिन इसमें कोविड से जो डेथ हुई हैं वो 39% है। और 75 वर्ष से अधिक आयु के उम्र दराज जो लोग हैं वो कुल आबादी का 2% हैं, लेकिन यहाँ जो कोविड से डेथ हुई हैं वो 14% है। यानी इसका निचोड़ ये है कि भारतवर्ष की 25% आबादी जो 45 वर्ष से लेकर ऊपर की आयु की है, 75 वर्ष से ऊपर तक की, उसमें 85% कोविड रिलेटेड डेथ हुई है। तो ये आयु वर्ग है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, भारत सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को भी। इसको हम फिर फर्दर आपको और ग्रैनुलर बेसिस पर ये बता रहे हैं कि पीपल हु आर बिटवीन 60 to 74 years of age, they constitute 8% of India's total population. However, they also show 39% of COVID-linked deaths. And people who are more than 75 years are 2% of India's population, but they show 14% of COVID deaths. So this is a brief summary that I wanted to present before you. Thank you.